Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And don't forget to prefix 011 before the numbers if you are calling from outside Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, we are joined in the studios by financial expert Dr. Yamini Agarwal. Yamini, welcome to the show. Thank you. नमस्कार, मार्केट मंच में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106। तीसरा नंबर है 23717117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है निश्चित। The headlines: Retail inflation in last month climbs to 6.01%. Key domestic stocks plunged 3% amid negative global cues. Sensex closes below 56,500. Nifty finishes below 16,900. Rupee weakens to settle beyond 75 rupees 50 paise per US dollar mark, and Brent crude prices hover around $94 per barrel. खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने 6.01% बढ़ी। वैश्विक कारोबार में नुकसान के चलते घरेलू शेयर बाजार में 3% की गिरावट। सेंसेक्स 56,500 के स्तर से नीचे पहुंचा और निफ्टी भी 16,900 अंक से कम। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर $75.50 प्रति डॉलर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल तक आई। Retail inflation jumped to 6.01% in January 2022 compared to 5.56% in December 2021. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, rate based on the Consumer Price Index CPI, inflation in food and beverages rose to 5.58% compared to 4.5% in December. However, on a month-on-month basis, retail inflation fell by 0.3%. The inflation trend for January 2022 is along the expected lines, with Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das saying earlier today that it was likely to come in around the 6% mark. Well, Yamini, we would like to have your views on this this uptick in retail inflation that has come to 6.01% in January, and especially when the RBI has kind of continued with its accommodative stance, when inflation is kind of trying to get into the red zone. How do you see this? Well, the inflation was within the targets for a long time, by 5.6% or so, but it has crossed the 6% mark in January. We do see that the international crude oil prices have been at an all-time high with $95 per barrel, and even in January they were at a higher level. Also, if you see that because of the Omicron fears,
there were supply chain disruptions that were there, because of which the inflation rose. The previous figures for the retail inflation, as I said, was 5.6, and still the wholesale inflation was double digit, which did cause a matter of concern. As far as the accommodative stance is concerned, we do see the RBI continuously supporting the recoveries that are there, primarily to support the GDP growth as well as to support the SMEs as well as the other market players in terms of a lower interest rate. Well, today we have our first caller, Harish from Mumbai. Harish, welcome to the show. नमस्ते सर. हाँ नमस्ते, सवाल पूछिए. हाँ सर, हिंदी में पूछ सकता हूँ ना? जी जी जरूर पूछें. हाँ सर, मेरा फिक्स डिपॉजिट है बैंक में 60,000 का. ओके. हाँ तो वो 25 नवंबर को मैच्योर हो चुका है. 25 नवंबर 25 नवंबर पाया हूँ, तो ये रिन्यू कर सकते हैं लोग? जी, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है अगर आप उसे रिन्यू नहीं करते, और अगर बैंक जो है आजकल रिन्यू नहीं करता तो आप उसको अभी रिन्यू कर सकते हैं. दिल्ली से गौतम है फोन लाइन पर. हेलो गौतम, आपका प्रश्न पूछिए. Okay, it seems that we'll get back to Gautam later. यहाँ वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के चलते आज घरेलू शेयर बाजार काफी नुकसान में रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग 3% लुढ़क गए. सेंसेक्स आज 56,500 से नीचे आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,900 के स्तर के नीचे आ गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1,747 अंक यानी 3% घटकर 56,406 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 532 अंक यानी 3.06% गिरकर 16,843 पर आ गया. विस्तारित बाजार की अगर बात करें तो बीएससी मिड कैप सूचकांक 3.51% लुढ़क गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 4.15% की गिरावट आई. इस गिरावट को यामिनी जी आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए, एफआईआईज का ज्यादातर एक सेल ऑफ रहा है मार्केट्स में कुछ मंथ्स में, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेंगी, जिसकी वजह से एफआईआईज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इमर्जिंग मार्केट से निकल करके यूएस की तरफ जा रहे हैं. देखा ये भी जा रहा है कि ओवरऑल जो कुछ चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से जो ऑल टाइम हाई हैं, वो इन्फ्लेशन की तरह और महंगाई दर की तरह जो है पूरे संसार में जो है दिक्कत कर रहे हैं. भारत में भी उसकी चैलेंजेस हैं. ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, वो एक फायदा पहुंचा रहे हैं. जी. एंड अगेन वी आर जॉइंड इन बाय गौतम फ्रॉम दिल्ली. गौतम, कैन यू हियर अस नाउ? हेलो. हेलो. Can you hear us, Gautam? Yeah, go ahead with your question, please. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं दोबारा कॉल करता हूँ. Okay, it's all right. Okay, we have Hasmukh Dedia from Mumbai. Hasmukh जी, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी, हाँ. जी, सवाल पूछें. या नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. या नमस्ते. हाँ, मेरा क्वेश्चन जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे या मीडियम में, उसी के आगे लेके जाना है. आपके हिसाब से आरबीआई जो अभी अपना एकोमोडेटिव स्टेंस है जी, वो न्यूट्रल जी जी मतलब कब तक कर सकता है? जी देखिए, फेडरल रिजर्व पॉलिसी के संकेत अभी हैं कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे. 17 फरवरी के मीटिंग के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि कब वो उसको बढ़ाएंगे. जब फेडरल रिजर्व बढ़ाता है उसके आसपास ही जो है आरबीआई भी कुछ स्टेप्स उठाएगा ताकि जो है पॉलिसी इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम पा सके देश के लिए. तो इसलिए माना जा रहा है कि जब फेड रेट बढ़ाएगा तभी उसी के आसपास आरबीआई भी रेट बढ़ा सकता है. और ठाणे से गुरुनाथ हमारे साथ. हेलो. जी सर, नमस्कार. जी नमस्कार, आपका प्रश्न. सर यामिनी मैम को भी नमस्कार. जी नमस्कार. मैम नमस्कार. मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछना था मैडम. किसी देश का मैडम समझो डिफॉल्ट हो जाता है या दिवालिया निकलता है मैडम, तो वो कभी कभी डॉलर लेने पहुंचते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पहुंचा तो उसको देने से इनकार कर दिया. मैडम यही पूछना था मुझे कि उनकी टर्म और कंडीशन
और ये जो अपना ये जो लोन देते हैं लोग, एक कितना प्रतिशत पे क्या परसेंटेज है इनका इंटरेस्ट रेट, और ये जो HDR जिसमें है जो स्पेशल ड्राइविंग राइट, ये किस देश के पास में है? अमेरिका के पास में है कि और किसी देश के पास में? थैंक यू जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है डिसइक्विलिब्रियम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। अगर कोई भी देश डिफॉल्ट करता है तो वो जाकर के अपनी पेमेंट्स में, इंपोर्ट्स की या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में, तो वो IMF से जाकर के बोरो कर सकता है। उनकी बहुत सारे क्रेडिट लाइंस होते हैं जिससे वो बोरोइंग कर सकते हैं। उसके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। Our next caller is Jitendra from Bhopal. Jitendra? जी सवाल पूछें। जी नमस्ते सर। नमस्ते, सवाल पूछें। यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते मैम, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये ऑटोमेटिक रूट और जो गवर्नमेंट रूट होता है इसके बारे में बताइए, और जो FPI और FII होता है उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताइएगा मैम। जी, ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जब आप निवेश करते हैं। तो ये FDI की इन्वेस्टमेंट्स में ऑटोमेटिक रूट माना जाता है, जहां पे गवर्नमेंट रूट नहीं होता पर अप्रूवल्स की जरूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट कैप्स हैं जिस तहत तक आप निवेश कर सकते हैं। FII जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं, इक्विटीज वगैरह में, और FDI जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं 10% से ऊपर ओनरशिप में। Well, at this time, it's time for a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्रा में, और कोलकाता से अतानु शाह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, नमस्कार। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोलकाता। माय नेम इज अतानु शाह। वन थिंग, दिस इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज that what is investment education protection fund and how it is working. One question, first question. And my second question, previous day we our All India Radio enjoy its World Radio Day. One thing is that or sometime right just now I am outside of my room. So one thing is that how any particular any provision to know how you use and download the radio net from net, and how we listen our program after program schedule. थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आपको बता दूं, आप अपने जो प्रोग्राम डाउनलोड करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप newsonair.gov.in पर जा सकते हैं, और साथ ही आप हमारा न्यूज ऑन AIR ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फंड बेसिकली एक फंड है जो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको शिक्षा देता है या आपको एजुकेट करता है। इसी जी, yeah, that's right. Our next caller again is Gautam from Delhi. Gautam, can you hear us? Greetings to everyone. Yeah. So my question is basically what is F&O in a stock market, and what is particularly call and put option in F&O, and how safer is this in comparison to actual normal trading or investing in a stock market? Thank you, everyone. Well, before Yamini ma'am gives you an answer, let me tell you that F&O and this call and put thing is it's a very detailed thing, which I think it won't be possible for us to provide you with an answer in such a short span of time. But anyways, I'll let Yamini ma'am to take over. So you have futures and options. Call means to buy an underlying asset, and put means to sell up underlying asset. An underlying asset can be a stock, commodity, or anything else. It is much riskier than the actual trading because it is pegged on a future date, on a future specified date at a future strike price, or a price which you determine for the future. So it is more volatile, considered to be more volatile, but it is also used for hedging. Well, moving on to some stories from the stock markets. The Sensex and the Nifty today logged heavy losses in sync with plunge in the global equity markets. Both key domestic indices lost around
3%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished below the 56,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended below the 16,900 level. The Sensex tumbled 1,747 points, or 3% to settle at 56,406, while the Nifty lost 532 points, or 3.06% to 16,843. The mid-cap and the small-cap indices of the Bombay Stock Exchange fell more than the Sensex. The mid-cap index declined 3.51% and the small-cap index ended 4.15% down. And in the Sensex pack, all companies except TCS logged losses. Tata Steel was the top loser as it declined 5.5%, followed by HDFC, which lost 5.3%. SBI tumbled 5.2%. ICICI fell 4.7%, and Kotak Bank slipped 4.5%. Sectorally, all indices logged losses. Realty lost the most as it fell 5.2%, and followed by metal, which plunged 5.1%. The Bankex and the basic materials both closed 4.3% down, while finance and industrials both tumbled 4.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 552 companies gained while 3,007 fell. Shares of 111 companies remained unchanged. और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मार्केट मंत्र और भिलाई से रवि नारायण है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक एनएफओ आ रहा है का जो मल्टी कैप का है जी, और उसमें क्या है कि उनका प्लान ये है कि वो जो है 25% है, 27% जो है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप में जो है इन्वेस्ट करेंगे और 10% जो है ग्लोबल उसमें भी करेंगे, स्टॉक में करेंगे जी। तो इनका बड़ा मतलब सेल्स प्रमोशन के हिसाब से तो बड़ा अच्छा है, ब्रोशर वगैरह भी बहुत अच्छा है, बट मेरा अप्रहेंशन ये है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि ये स्टार्ट में दुनिया भर के जो स्मॉल कैप है वो बहुत ज्यादा बीटिंग लेते हैं छोटे छोटे इसमें, तो इसका जो 27% का इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या पड़ेगा इस फंड के, और इसमें सेफली हम डालेंगे तो क्या फ्यूचर में इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं अभी करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए? जी देखिए, बिना जाने कि कौन कौन से स्टॉक्स में वो निवेश कर रहे हैं आपको कोई भी रिस्क या रिटर्न बताना मुश्किल है, पर 27% या 25% जितना भी वो निवेश कर रहे हैं उतनी परसेंटेज का असर आपके डायरेक्टली रिस्क और रिटर्न पे पड़ेगा। तो जितनी वेटेजेस होती हैं उनका सीधा असर आपके ओवरऑल आप कितना रिस्क ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स यूजुअली ग्रोथ देती हैं बहुत सारे समय, पर किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और उसकी कितने बढ़ने के चांसेस हैं उसी पे निर्भर करता है कि वो पोर्टफोलियो कितना रिस्की होगा। और साथ ही साथ जब ये एनएफओ जब ये फाइल करते हैं तो आपके पास प्रोस्पेक्टस होता है, उसके डिटेल्स होते हैं, आप उसमें आप पढ़ सकते हैं फाइन प्रिंट्स कि ये कहाँ वाकई इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कितना फायदेमंद रहेगा आपके लिए, चाहे वो डोमेस्टिक स्टॉक्स हो या फॉरेन की जो आप बात कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्क्रेशन ऑफ द इन्वेस्टर, तो आप थोड़ा इसे देखकर अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा ये तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रुपए की बात करें, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 22 पैसे कमजोर रहा और इसने 75 रुपए 50 पैसे से ऊपर जाकर कारोबार किया। रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक आज दिन के कारोबार में 0.22% की बढ़त से 96.29 पर था।
एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। रूस द्वारा यूक्रेन पर किसी भी समय हमला करने की चेतावनी दिए जाने के कारण तेल की कीमतें पिछले 7 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इसके साथ ही बॉन्ड और यूरो के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी शेयर कारोबार में आई कमी के चलते दोनों ही बाजारों में गिरावट देखी गई है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 1.6% की गिरावट में रहा। वहीं जापान के निक्केई 225 के कारोबार में 2.2% की कमी आई। उधर हांगकांग का हेंगसेंग आज 1.4% के नुकसान में रहा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% लुढ़क गया। इस बीच चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज 1% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजार की बात करें तो आज फ्रांस के कैक में 3.5% की और जर्मनी के डेक्स में 3.3% की गिरावट आई। लंदन का FTSE 100 2% लुढ़क गया। Our next caller is Rajendra from Delhi. Rajendra, can you hear us? Yeah. Please go ahead with your question. So I have one question and one feedback. In fact, your program is a very good program, and I recommend it to I'm a trainer. I recommend your program to people who are not from finance background. Thank you, sir. Thank you. This is a very good program. Actually, people who are coming from science and engineering background to understand nitty-gritties of economics and stock markets and whatever under the sun. So compliments to you guys. Thank you, sir. Thank you. Second thing I wanted to know about the electric, automobiles. So there is so much shortage of electricity even in towns like Gurgaon. How government is planning to do that? Bridge the gap. जी देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने का उद्देश्य यही है कि जो ओवरऑल पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए और जो ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम की जाए। सब्सिडीज के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए ताकि ओवरऑल जो एयर क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बेहतर मिल सके। Again, it's time for a quick break now. We'll slip in a quick commercial break. Do stay tuned in. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए। जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में। और गाजियाबाद से रवि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। Well, I think we have lost Ravi. We'll get back to him when he calls back. Well, Yamini, we would also like to know that in the past 2 sessions we have seen almost a massacre, a bloodshed on the streets. But when we compare this with the mid caps and the small caps, they have taken a big beating as compared to the general stocks. So how do you see the small caps performing in the near future, or even the mid caps? Well, usually whenever there is more volatility in the market, primarily whether it is for international reasons or for domestic reasons, we would see that the beating is usually there around the mid caps and the small caps because they are the risky stocks. Also, the investor tends to shy away every time there is a lot of uncertainty with respect to the overall developments. So prior to the 2 sessions, we did have Omicron having uncertainty caused to the economic recoveries. But later on we did see that the international crude oil prices, which were at an all-time high of $95 per barrel, as well as the Fed's indication to increase interest rates were one of the driving factors. Also we did see that there were stock specific actions in the stock markets which were primarily that there are overall developments where the FIIs have been taking out money because of these reasons. So these, I believe, have been some of the reasons. Our next caller is Dharamveer from Delhi. Dharamveer जी, आप सुन सकते हैं हमें? जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम ऐसा है कि एक हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, उनके दिव्यांग हैं, वो FD उनकी बैंक में है,
लगभग 15-20 लाख रुपए की। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए कोई ऐसी स्कीम बताएं जिसमें वो अपना एफडी में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, आज की डेट में 5% का है, और उसमें मार्केट में वो इनको एक्सपर्ट की कोई राय नहीं मिल पा रही, ना एक्सपर्ट से उनका कांटेक्ट हो पा रहा। आप कृपा करके ऐसा बताएं कि कहाँ जाके संपर्क करें, और वो दिव्यांग हैं ज्यादा, मतलब इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। जी देखिए, जो 15 से 20 लाख की एफडी उनकी है वो निवेश कर सकते हैं। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो एक सीनियर सिटीजन स्कीम आती है बैंक और पोस्ट ऑफिस की, उसमें निवेश कर सकते हैं जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर वो मंथली इनकम चाहते हैं तो मंथली इनकम स्कीम्स भी आती हैं पोस्ट ऑफिस की। अगर वो अभी इंटरेस्ट नहीं चाहते और इसको 2 गुना करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आती हैं, जैसे किसान विकास पत्र हैं वैसे। तो ये कुछ दायरे हैं। वो कुछ पैसा इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं कि कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए आ रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटेल इन्वेस्टर के लिए आए तो उसमें निवेश कर दें। ऐसे ही सोवरेन गोल्ड जो है बॉन्ड्स आते हैं, उसके अंदर भी अगर वो निवेश करें तो उसमें भी, लेकिन पैसा पूरा ना निवेश करें, उसको थोड़ा थोड़ा बांटे, 5-5 लाख या कुछ ऐसी इकाइयों में बांटे जिसमें अलग अलग रिटर्न उन्हें मिल सके जो हायर लेवल पे हो सके। And also I'd like to add here that Yamini, I think PPF is another good option for him. He could also go for PPF, but also depends on his age, what his age is, and also he can, as you said, rightly said, he could diversify into equities as well, but that again depends on his age, his risk appetite and all. Since he is blind and one would like to keep the risk factor low, so I would suggest that one invests in debt, which would be the government securities, or A-rated corporate bonds only. Yeah. Even in mutual funds, if he wants to invest, then in debt funds would be the right option. Correct. PPF may not be an option because PPF has a block-in period of at least 5 years, before one can withdraw for a specific cause. Absolutely. Or 15 years before one can withdraw, though it gives a good interest rate. So if he is saving for his old age, then he can probably invest there. If he is looking for a monthly income to support himself, then the monthly income scheme by the post office may be an appropriate approach. Absolutely. And I think he could also go for this NPS, the new pension scheme, Tier 2, which has just come up. Tier 2 account can also be a good account where his investments can be going into the stock markets or other markets and give him good returns. Yeah, and moving on to the next story. Moving on to oil. Oil prices today fell around 0.5% after hitting their highest in more than 7 years. The crude prices rose last week on fears that a possible invasion of Ukraine by Russia could trigger US and European sanctions that would disrupt exports from one of the world's top oil producers. And in the intraday trade, Brent crude was trading around $93.90 per barrel, while the WTI crude prices were at $92.60 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना आज 555 रुपए की बढ़त पर रहा और 49,665 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मार्च के वायदा कारोबार में 1,100 रुपए के उछाल के साथ 64,090 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना उछाल के साथ $1,858.90 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी भी बढ़त से $23.70 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। Well, very briefly, Yamini, would like to know, as in, how do you see this gold investment in the coming time, especially when we are seeing this choppy waters in this markets these days? Well, gold investment always remains to be a very safe investment for people, especially when there is a lot of uncertainty and volatility in the market. So I do see it picking up each time the uncertainty, whether it's geopolitical tensions or because of any other reason, it increases. Yeah. I would also like to clarify for one person who had asked a question regarding the deduction that is available in income tax for blind, which is 80U, 75,000 and 1,25,000. Well, यामिनी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर से।
Retail inflation in last month climbs to 6.01%. Key domestic stocks plunged 3% amid negative global cues. Sensex closes below 56,500. Nifty finishes below 16,900. Rupee weakens to settle beyond 75 rupees and 50 paise per US dollar mark. And Brent crude prices hover around $94 per barrel. Well, this is Nishit Kumar along with the entire team of Market Mantra saying adios. Goodbye. नमस्कार। बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पास से पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.